and let us continue from here itself. I guess आपको ये कोड फाइल मिल गया होगा अभी, है ना? Yes, yes, I got it. Yeah. हाँ, फाइन. तो ये चीज हो गया and let us continue with the same file, है ना? इसी को आगे बढ़ाते हैं. We will be completing lemmatization and TF-IDF here, and you can have everything clubbed at one place only. ठीक है? So I will be running these cells quickly, and this was where we stopped. ठीक है? And from here itself we will be proceeding. तो stemming तक हो गया है. Let us proceed ahead and let us talk about lemmatization. So last class में when we were discussing about lemmatization, we have already understood कि lemmatization actually करके देगा क्या, है ना? It will also give us the root word, but every time when lemmatization is operational, you will find that the output that you get in case of lemmatization will be, I can say, a meaningful word. ठीक है? So in case of lemmatization, what we do is we use something known as word net lemmatizer. ठीक है? जैसे स्टेमिंग में हम लोग एक मॉड्यूल यूज करते हैं पोर्टर स्टेमर, वैसे ही in case of your lemmatization we use something known as word net lemmatizer. ठीक है? तो देखते हैं क्या आइडिया है. And here I will simply say lemmatization, and let us start our discussion. So I will first of all import that. So I will say from nltk dot stem import word net lemmatizer, and then I will say from nltk dot corpus import let's say stop words. ठीक है? हालांकि ये पहले भी हो चुका है because I have rerun the cell, तो ये already हुआ पड़ा है यहाँ पर ऊपर में, but still कोई दिक्कत नहीं है. Let us do it once again. Fine. उसको बस overwrite कर देगा. Okay. So this is what we have. Now what we will do is, like in the previous case also, I had created one variable, है ना? Stemmer बोल के एक variable बनाए थे. वैसे ही यहाँ पे भी अभी I will be creating a variable known as lemmatizer, let's say. Okay, so I will say lemmatizer is equal to your word net lemmatizer. तो ये variable मेरे word net lemmatizer को instantiate करने के लिए है, and then I will be writing the simple code which is quite similar to the way how I wrote it for stemming. तो stemming में जिस तरह से किए थे उसी तरह से यहाँ पे भी एक कोड लिखेंगे 3-4 लाइन का, and it will be doing the needful, है ना? And after understanding stemming वाला कोड, I guess ये भी आपको समझ में आ जाएगा, कोई खासा दिक्कत होगा नहीं, right? So in the same lines, I will simply be writing for I in range पूरा length of sentences जो भी है मेरे पास, and remember what are those sentences, है ना? So this is what we have, and then I will say word is equal to nltk dot word underscore tokenize, right? Sentences को one by one tokenize करना शुरू करेंगे, and नीचे यहाँ पर I will say words is equal to, I will be doing the lemmatization here. So I will say lemmatizer dot lemmatize. Okay, so this lemmatize function, इसके अंदर डाल दो अपना word, and then I will say for word in words. Okay, if word not in set stop words dot words English. ठीक है?
दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एंड फाइनली क्या करेंगे, सबको एक साथ ज्वाइन कर देंगे, है ना. So I will say sentences, all of them is equal to dot join words. Fine. So ये चीज हो गया. And now if I show you the output, if I say sentences, I show you the output, you will find this is the output. Okay. अब देखो यहाँ पर the output that you are getting, this output, एक second, this output and this output will have some differences. Differences with respect to the punctuation marks, the different other stuffs which are actually responsible for making out a big or even not, if not a big difference, a significant difference between the output. ठीक है. I would recommend you कि ये जो भी हम लोग आज कर रहे हैं या जो भी लास्ट क्लास में भी किए थे, उसको खुद से भी कोई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को कहीं से कॉपी कर लेना. जैसे anything, let's say if you are interested in let's say Bollywood और कुछ भी उठा लो, let's say some government projects, some new schemes, Bollywood, sports for that matter of fact, कुछ भी हो, गूगल पे जाओ, विकिपीडिया खोल लो, एक दो पैराग्राफ वहां से कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पर एंड जस्ट ट्राई टू डू दीज थिंग्स. यू विल नोटिस कि जब आप स्टेमिंग करते हैं तो द वे यू आर गेटिंग द आउटपुट एंड जब लेमेटाइजेशन करते हैं तब जो आउटपुट मिलेगा, there will be differences. So when you do that practically by yourself, you will be able to make that out, which will be even more helpful for you. ठीक है. But यहाँ पर basically आपको ये समझना है कि whenever you are talking about lemmatization में एक peculiar चीज होगा जो आप notice करेंगे, which is basically कि whenever we are talking about any particular words, now that word can be the name of a person, it can be name of a company, okay, name of a brand, whatever, okay, so name of a country, okay, name of a particular currency, कुछ भी. So whenever you are talking about these things, you will notice कि जब आप stemming करते हैं तो the names are all written in small letters. For example, if I am talking about India, तो India का I जो होगा वो छोटा में लिखा रहेगा in case of stemming, along with the other alphabets of India. ठीक है. बट वही इंडिया को जब आप लेमेटाइज करेंगे तो इंडिया का आई कैपिटल दिखेगा. These are few small little observations which you will be able to make out when you do these things practically by yourself. And code wise तो कुछ बड़ा बड़ा चीज है नहीं. These are all one liner code, है ना. ये सारा एक एक लाइन का कोड है. And I guess आपको कोड समझ में भी आ रहा है कि कौन सा लाइन क्या कर रहा है. तो I would suggest एक बारी करके देखो. And अगर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में यू कैन आस्क मी, मतलब इन केस यू आर नॉट एबल टू मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन. क्योंकि एज ऑफ नाउ like in this particular class I am not able to make out much of a difference between this output and this output. That is why I am suggesting कि इसको एक बारी करके देखना. हालांकि आउटपुट दिखेगा like in my other previous classes, क्योंकि I usually do this, एक रैंडम सा कोई भी टॉपिक उठा करके पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट करके I show these things. तो कभी कभी पैराग्राफ में प्रॉब्लम होता है. पैराग्राफ में प्रॉब्लम मतलब वो पैराग्राफ ही उस तरह से बना हुआ रहता है जिसमें कि सारा आपका स्मॉल लेटर्स होगा, ओके, कोई ऐसा बड़ा हैवी वर्ड होगा ही नहीं. तो इन दैट केस द आउटपुट दैट यू गेट इन स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन आर ऑलमोस्ट सेम, जो कि मेरे को यहाँ पे देखने में भी लग रहा है, ओके. एंड आई गेस यू विल आल्सो ऑब्जर्व द सेम थिंग, ओके. बट एक्चुअल में डिफरेंस होता है बिकॉज व्हेनेवर आई एक्सप्लेन दीज थिंग्स टू सम अदर स्टूडेंट्स, वहां पर ये चीज रिफ्लेक्ट होता है. आई डोंट नो व्हाई इन योर केस ये वाला पैराग्राफ में वो नहीं दिख रहा है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक दो पैराग्राफ को खुद से गूगल से उठा करके थोड़ा देखना, if you are able to make out the difference, and you will be able to make out the difference क्योंकि है difference, है ना. तो वो चीज आपको दिखेगा, उसको ट्राई करना. एंड अगर दिक्कत आए तो यू कैन टेक्स्ट मी, ठीक है. हालांकि होगा इसी तरह से, प्रोसेस यही है, ओके. तो ये समझ में आ गया लेमेटाइजेशन इज इट क्लियर? यस सर. ओके. तो ये चीज है आपका लेमेटाइजेशन. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज योर EF IDF. ठीक है. तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर वी विल बी डूइंग द कोड. तो I'll just go to my blackboard
Right. So this is what we were discussing, I guess. Okay. Yes, sir. Okay. Fine. So let us talk about TF-IDF, and let us also talk about the factor why word to vec is not used. अब देखो ऐसा नहीं कि word to vec बिल्कुल नहीं यूज होगा, ठीक है, but 99% time, या if not 99, at least 95% times you will not use word to vec. हाँ, अगर आप कन्वेंशनल RNN का बात करते हैं तब you can use word to vec technique, ठीक है, क्योंकि RNN itself is a very slow and a very trivial thing as of now. अब जब आपके पास NLP आ गया है एंड अलग अलग डायमेंशंस आ गया है NLP के अंदर, तो RNN becomes a very trivial thing, ठीक है. So whenever you are talking about RNN, at that point of time you may talk about word to vec as a text preprocessing technique, as a technique to convert text into vector. But जब हम लोग इधर आ जाते हैं NLP, core NLP के अंदर, at that point of time word to vec is usually not preferred. TF-IDF is preferred. क्यों होता है वो अभी हम लोग समझेंगे. Right. So TF-IDF का मतलब क्या है? Let us try to understand that. तो देखो, again TF-IDF as a topic is a very huge topic, ठीक है, but I'm intentionally not going into that क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा mathematics है and I don't want to burden you with that. But हाँ, अगर आपको मन हो कभी तो you can let me know. I will take a separate class and will explain you different formulas, ठीक है. TF का अलग फॉर्मूला है, IDF का अलग फॉर्मूला है, तो वो explanation अगर आपको चाहिए होगा in case, so you can let me know in a separate class. I will discuss those things. But अभी के लिए, for today, we will be constraining ourselves to the general idea of TF-IDF, ठीक है. तो यहाँ पे दो चीज है, term frequency. Okay, TF stands for term frequency and IDF stands for inverse document frequency, ठीक है. So this is your term frequency and this is inverse document frequency. This is what we have. Now बात करते हैं कि इसका क्या need आया. Okay. So for that what I will do is I will be taking up an example. मान लो एक example ले रहे हैं. मान लो I am saying mango, banana, okay, ठीक है. तो ये एक example I have given you which says mangoes, bananas and apples were offered to monkeys and elephants. Let's say you are visiting a zoo and आपके सामने monkey आया, elephant आया, all these things are coming. So what you do, you are offering them these fruits, mangoes, bananas, apples were offered to monkeys and elephant. अब देखो, आपको पता है from the previous few classes कि यहाँ पे word to vec कैसे लगेगा, है ना. एक vocabulary बनाएंगे, vocabulary के अंदर एक segment रहेगा words का, दूसरा segment रहेगा index value का. उसमें most of these words will be there, है ना. Most of these words will be there. जो नहीं रहेगा उसके जगह पे UNK लिख देंगे और जो रहेगा उसके जगह पे associated index value पे डाल देंगे, ठीक है. तो मान लो I'm just giving you a random example here कि when you convert this statement into a vectorial format, the output that you are getting is something like this. मान लो mango का 12 है, banana का 11 है, and का मान लो 3 है, apple का 16 है, okay, 17 है, फिर
फिर मान लो 22 है, 27 है, ओके 37 है, 81 है, 88 है, 3 है, एंड मान लो ये है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इनपुट स्टेटमेंट, है ना। और ये कैसे मिला? थ्रू वर्ड टू वेक, ओके। ये तो क्लियर है हम लोगों को कैसे आया ये, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं लास्ट फ्यू क्लासेस में। बट यहाँ पे क्या है कि चलो ये तो मिल गया, दिस इज फाइन, दिस इज अ वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इट इज ओके, वी आर हैविंग द न्यूमेरिकल फॉर्मेट, अच्छी बात है। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नो रिलेशनशिप, ओके। कहने का मतलब है कि अब देखो, अगर हम लोग इस डेटा को बस देख रहे हैं, ओके, डोंट लुक एट द स्टेटमेंट फॉर अ सेकेंड, मान लो आई एम जस्ट हाइडिंग द स्टेटमेंट फॉर अ मिनट, ओके। तो मान लो कि आई एम जस्ट शोइंग यू दिस पर्टिकुलर वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब इस वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को देख करके can you tell me that there is any relationship between the words of the given statement? Obviously नहीं, है ना। मतलब कहने का क्या है मेरा, जैसे कि अगर आप इस स्टेटमेंट को देखो तो देखो, सबसे पहले तो आई एम रिमूविंग द अननेसेसरी स्टॉप वर्ड्स। ये स्टॉप वर्ड है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, सो आई एम रिमूविंग द स्टॉप वर्ड्स और द कनेक्टर्स। नाउ इसको हटा, चलो इसको भी हटा देते हैं, डज नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है। ये सब को जब हटा दिए तो व्हाट डू वी हैव? वी हैव दीज फ्रूट्स, है ना, एंड वी हैव these two animals। तो जब आप अपने टेक्स्ट को देख रहे हैं तो आपको पता है कि हाँ यार ये फ्रूट है, सॉरी लेट मी यूज येलो फॉर दिस, तो ये फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, तो तीनों के में कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप मंकी एंड एलिफेंट को देख रहे हैं तो यू कैन मेक आउट कि हाँ यार ये दोनों जानवर है, दे आर काइंड ऑफ रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर सेम एनिमल किंगडम, तो they are kind of related to each other in some way or the other। ये देख करके समझ में आ रहा है हम लोगों को। बट अगर आई शो यू द वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये नंबर अगर हम आपको दिखाएं, तो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू मेक आउट दैट सेम इन्फरेंस? इज इट पॉसिबल फॉर यू टू मेक आउट द सेम इन्फरेंस? ही कहेंगे ना, वही चीज कि there is a bit of relationship between the words in the given statement। द आंसर इज नो, है ना। वो नहीं हम लोग मेक आउट कर पाएंगे क्योंकि कोई नंबर देख करके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे 83 लिखा हुआ है, यहाँ पे 33 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, तो देयर इज नो मच ऑफ अ रिलेशनशिप व्हिच वी कैन मेक आउट। तो अब जब ये परेशानी आया कि रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, तो क्या हुआ कि द रिसर्चर्स दे केम अप विद द आइडिया ऑफ TF-IDF। अब TF-IDF में क्या होगा कि the numbers that you will have, they will be very close to each other if they are having kind of relationship। तो उसको एक्सप्लेन करने से पहले I will just give you a graph here, okay। मान लो कि आपका इस तरह से एक ग्राफ है, okay। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पे एक और पॉइंट है, एंड यहाँ पे एक और पॉइंट है, okay। सिमिलरली यहाँ पे एक पॉइंट है एंड यहाँ पर एक पॉइंट है, ओके। तो कहने का मतलब है कि इफ आई नेम देम, लेट्स से दिस इज मैंगो, दिस इज एप्पल एंड दिस इज बनाना, ठीक है। एंड ये जो दो पॉइंट है, ये जो दो पॉइंट है, इसमें एक आपका मान लो मंकी है एंड एक आपका एलिफेंट है। क्यों? कहने का मतलब है कि ये जो तीन वर्ड्स है ये बहुत नजदीक है एक दूसरे के, है ना। So basically we use something known as cosine similarity। आपको बस नाम याद रखना है, don't go into the mathematics of it, आपके लिए important नहीं है। So cosine similarity होता है एक चीज, okay। It is same as some distance, okay। एक फॉर्मूला है, cos यूज करके डालते हैं, फॉर्मूला आपके लिए essential नहीं है। So एक distance है ये, this is nothing but a distance formula, okay, which is used to compute the distance between two individual points। अब यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, मैंगो, एप्पल एंड बनाना के बीच में
कोसाइन सिमिलैरिटी को फिगर आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एंड यू विल फाइंड दैट द कोसाइन सिमिलैरिटी इज वेरी स्मॉल, क्योंकि तीनों बहुत क्लोज है डेटा पॉइंट्स, या ये तीन फ्रूट्स जो है बहुत क्लोज है। एंड व्हाई दे आर क्लोज? क्योंकि वो लोग एक ही स्पीशीज है ना, फ्रूट ही है, मीठा लगता है खाने में, एंड हैव सिमिलर हेल्थ बेनिफिट्स, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ओके, कभी कभी कलर भी सेम हो जाता है मैंगो एंड बनाना का, लेट्स से। ओके, so because they have multiple similar factors associated with each other, that is why the cosine similarity will be low, which will in turn show that these data points or these fruits are close to each other. But वहीं अगर आप मान लो मैंगो एंड मंकी, ये दोनों के बीच में अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, कोसाइन सिमिलैरिटी बेसिकली अगर आप करते हैं, तो यू विल फाइंड दैट द डिस्टेंस इज ह्यूज, है ना, यू विल फाइंड दैट द डिस्टेंस इज ह्यूज। सिमिलरली मान लो अगर एप्पल से आपका एलिफेंट को करते हैं, या मैंगो से भी एलिफेंट को करते हैं, देन ऑल्सो द डिस्टेंस इज वेरी ह्यूज, द डिस्टेंस इज वेरी ह्यूज। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर देखो, अगर आप लेट्स से बनाना से कर रहे हैं, डिस्टेंस इज ह्यूज। ओके, सो वी डोंट वांट टू हैव दैट। डिस्टेंस इज ह्यूज मतलब क्या है? दोनों में सिमिलैरिटी कम है। ओके, सो दैट इज व्हाई कोसाइन सिमिलैरिटी विल बी लो। बट अगेन देखो, मंकी एंड एलिफेंट अगर इन दोनों के बीच में किया जाए, तो अगेन कोसाइन सिमिलैरिटी विल बी स्मॉल। क्यों? क्योंकि दोनों एनिमल है, दोनों चार पैर पे चलता है, लेट्स से यू कैन से बोथ ऑफ देम आर दे आर नॉट कार्निवोरस। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव, दीज आर डिफरेंट relationships, or these are different similar features of the animals which they share, or the fruits that they share, and that is why the cosine similarity of, you can say, mango, apple and banana will be less. Okay, similarly monkey and elephant के बीच में कम होगा, but again monkey and banana में अगर करेंगे तो ज्यादा आएगा, monkey and mango में करेंगे तो ज्यादा आएगा, like that। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को इस ग्राफ से समझ में आता है, एंड यही चीज द रिसर्चर्स दे वांटेड टू रिफ्लेक्ट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। तो जब आप वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वर्ड टू वेक में, तो ऐसा जो हम लोग बात की अभी 5 मिनट से, कोसाइन सिमिलैरिटी एंड ऑल दीज थिंग्स, इसके बारे में जो बात की हम लोग, वही चीज द रिसर्चर्स वांटेड कि यार यही चीज मेरा कहीं ना कहीं वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में भी दिखना चाहिए, ताकि just by looking at the vectorial representation, because you know that these vectors are only going to be fed to the algorithm, है ना। तो अगर हम लोग एक ऐसा इनपुट या एक ऐसा आई वुड से न्यूमेरिकल फॉर्मेट इनपुट का भेजें अपने मॉडल को, अपने एनएलपी मॉडल को, जिसमें कहीं ना कहीं इन्फ्रेंस मिल रहा है कि कौन सा वर्ड्स इंटरप्रेटेड है, कौन सा वर्ड्स नहीं इंटरप्रेटेड है, तो वो एक एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट देगा उसको, है ना। मेरा मॉडल का एक्यूरेसी बढ़िया होगा, थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस रहेगा। ठीक है, तो ऑल दोज थिंग्स व्हेन द रिसर्चर्स दे केप्ट इनटू कंसीडरेशन, दे केम अप विद दिस आइडिया ऑफ TF-IDF। अब TF-IDF क्या करता है, ये कोसाइन सिमिलैरिटी को ध्यान में रखते हुए व्हाट इट विल डू इज, अगर ये आपका स्टेटमेंट है, व्हाट इट विल डू इज इट विल गिव यू द आउटपुट लाइक दिस। सो TF-IDF का अगर हम लोग आउटपुट का बात करते हैं तो वो इस टाइप से आएगा। मान लो एप्पल या मान लो मैंगो के लिए 0.1 है, ओके, 0.3 है फॉर बनाना, ओके, 0.2 है फॉर योर एप्पल। 0.1 एंड 0.2 बगल बगल क्यों है, मतलब नजदीक क्यों है? क्योंकि मैंगो भी सर्कुलर होता है, एप्पल भी सर्कुलर होता है, लाइक दैट। ओके, तो ये चीज हो गया। उसके बाद अगर बात करें हम लोग आपका मंकी का, तो मंकी का मान लो द वैल्यू इज 10 एंड एलिफेंट का मान लो 11 है, या मान लो इतना अगर नजदीक नहीं तो मान लो 15 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको TF-IDF का आउटपुट मिलेगा। ये किसका है? वर्ड टू वेक का है, ये है TF-IDF का। नाउ इफ यू ओनली लुक एट दिस TF-IDF वाला आउटपुट, आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आपको ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये तीनों पॉइंट्स बहुत नजदीक है, मतलब ये तीनों के बीच में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। साथों साथ ये दो जो है, ये दोनों भी आपस में नजदीक है, 10 और 15 में नजदीकी है, बट अगेन 10 एंड 0.2 इज वेरी फार अवे, 15 एंड 0.3 इज वेरी फार अवे। तो
आपस में 10 एंड 15 का कुछ रिलेशनशिप हो सकता है, आपस में 0.1, 0.3 एंड 0.2 का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप हो सकता है, बट इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। ओके, यही चीज काइंड ऑफ हम लोग इस ग्राफ से भी समझे थे व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट कोसाइन सिमिलैरिटी, कि अगर आप मैंगो एंड मंकी के बीच के डिस्टेंस को कंप्यूट करें तो वो बहुत ज्यादा है, विच इज समथिंग नॉट डिजायरेबल फॉर अस। बट हाँ, अगर मैंगो एंड एप्पल का करेंगे तो द डिस्टेंस इज स्मॉल एंड वी कैन हैव दैट। सिमिलरली मंकी एंड एलिफेंट का करेंगे, डिस्टेंस इज स्मॉल, वी कैन हैव दैट। ठीक है, तो ये जो आइडिया था इसको काइंड ऑफ TF-IDF के थ्रू पूरा किया गया, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द आउटपुट फ्रॉम TF-IDF। ठीक है, एंड एज आई वाज मेंशनिंग यस्टरडे आल्सो, कल वाले क्लास में भी आई टोल्ड यू कि TF-IDF इज present inside TF-IDF is present inside scikit-learn. ओके, सो आज जब हम लोग अभी कोडिंग करेंगे तो यू विल फाइंड कि हम लोग scikit-learn लाइब्रेरी के अंदर से TF-IDF को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, एंड वो क्या करेगा, इस टाइप से आपको आउटपुट देगा। ओके, एंड जस्ट बाय लुकिंग एट द वेक्टोरियल आउटपुट दैट यू गेट फ्रॉम TF-IDF यू विल बी एबल टू से कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है। ओके, so this is actually what we have with respect to TF-IDF. ठीक है, कोई डाउट है अब? Any questions? No, sir, no. Okay. So ये चीज हो गया। Now what we will do is we will be which time we have? हाँ ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अभी तुरंत में देख लेते हैं वो सब कुछ, and then we will be proceeding ahead. So just a second. हाँ, okay. So TF-IDF देखते हैं। Okay. Now यहाँ पर ठीक है, इस तरह से ही कर लेते हैं, यू विल बी गेटिंग सम आइडिया। कुछ कुछ एक्स्ट्रा इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम इंपोर्टिंग, एंड बाकी सब तो आपके पास है। ये RE क्या है, व्हाट इज RE, डू यू नो? पता है ये चीज? पाइथन में शायद किए होंगे। आवाज नहीं आया, It's regex. थोड़ा वॉइस ब्रेक कर रहा है। रेगुलर एक्सप्रेशन इज इट? Regular expressions. Oh, regex. हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट। Yeah, it's regular expressions. ठीक है ठीक है। फाइन, तो इसको इंपोर्ट कर लिए। Now you might be knowing कि regular expression का क्या objective है, so I'm not going into that. Now what we will do is I will be writing some code and वो हम लोगों का help करेगा TF-IDF मॉडल बनाने के लिए। तो whenever, अच्छा I will show you first कि TF-IDF का कोड क्या होगा, then I will come one step backward। ठीक है, तो TF-IDF का जब आप मॉडल बनाते हैं तो I told you आपको sklearn से उसको import करना होगा। So you will say from sklearn dot feature extraction import, sorry, feature extraction dot text, क्योंकि feature extraction numerical values का भी होता है। So feature extraction dot text import TF IDF vectorizer, okay, and then I will say कोई भी variable ले लो, मान लो CV is equal to TF IDF vectorizer, okay, and then you can say X is equal to CV dot fit
underscore transform. ओके, क्या चीज को ट्रांसफॉर्म करना है? आपके पास एक कॉर्पस होना चाहिए, ओके, डॉट टू एरे। ओके, सो आपके पास एक कॉर्पस होना चाहिए, उसको आप एरे में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू TF-IDF। फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, किसको ट्रांसफॉर्म करो? कॉर्पस को। एंड कॉर्पस को क्या चीज में ट्रांसफॉर्म करो? इनटू एन एरे। ठीक है, तो जब इस सेल को हम लोग रन करेंगे तो हम लोगों को आउटपुट मिल जाएगा, बट अभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉर्पस डिफाइंड नहीं है। ठीक है, जो कॉर्पस होना चाहिए वो डिफाइंड नहीं है। सो वी विल कम वन स्टेप बैकवर्ड। ओके, यहाँ पर एक स्टेप पीछे आएंगे एंड यहाँ पर वी विल बी basically you can say we will be defining the corpus for ourselves. Okay, so initially what we will do is we will keep the corpus as a empty list। मान लो एक empty list के तौर पे corpus को रखेंगे, फिर उसके अंदर सब कुछ को insert करेंगे या implement करेंगे। ठीक है, so first of all I will do the stemming and lemmatization once again here. So I will say ph is equal to porter stemmer, वो सब कुछ ऑलरेडी imported है, so need not worry. Then I will say wordnet is equal to wordnet lemmatizer. Then I will say sentence is equal to nltk dot sent underscore tokenize, and I will do the paragraph ka tokenization sentence level. Okay, then once these three things are done, I will define my corpus. So I will say corpus is equal to एक empty list. ठीक है, एक empty list, and then I will start with the main piece of code. So I will say for I in range length of sentences then I will say review is equal to regular expression dot sub. अब यहाँ पे देखो हम लोग बात करेंगे आपका जो भी वर्ड्स है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर दी सिंबल्स यू माइट हैव यूज्ड स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड, ओके, कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड। ठीक है, तो ये पूरा चीज स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। ओके, क्योंकि एज आई टोल्ड यू द वर्ड्स व्हिच विल बी देयर सबको ही हम लोगों को एक तरह से वेक्टराइज करना है। ओके, TF-IDF के थ्रू। सो ये चीज आई एम राइटिंग एंड देन अच्छा सॉरी ये बाहर हो गया एक्चुअली, इस तरह से नहीं, ये इसके बाहर हो गया। हाँ, right, fine. Then I will be using these spaces and I will say sentences. Okay. Then I will say review is equal to review dot lower. ठीक है, देखो हम लोग कर क्या रहे हैं। I will tell you first, then we will write the code. What I am doing is in the first line यहाँ पर what I am doing is I am considering all the kind of alphabets which can be there in my corpus. छोटा alphabets हो सकता है, बड़ा alphabets हो सकता है, मतलब capital letters can be there, small letters can be there. तो दोनों को consider करते हुए rejects के through हम लोग वो चीज को cover कर रहे हैं। Then what we will do is we will keep every word which is there in the corpus in lower case. ठीक है, सबको lower case में रखेंगे just for sake of simplicity, just for sake of uniformity. We will keep the words, all the words in lower case. ठीक है, then what we will do whenever you look into any corpus, कोई भी एक paragraph या कोई भी एक text document जब आप देखते हैं तो उसमें बीच बीच में बहुत सारा delimiter होता है. For example, a punctuation mark can be there, like full stop, exclamation mark, comma, all these things can be there. तो यहाँ पर क्या करेंगे कि in the next step after you are converting every statement or every word into lowercase, what we will do is we will try to bring them into let's say we will try to split them basically.
कहीं ब्रिंग नहीं करेंगे, वी विल ट्राई टू स्प्लिट देम। अब जैसे मान लो दो वर्ड है, दोनों के बीच में कॉमा है, ठीक है, जैसे मान लो राम कॉमा श्याम, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है, तो बीच में बिकॉज देयर इज अ डेलिमीटर कॉमा, what we will do is we will try to split these two words separately. Before that we have to make sure कि राम का R and श्याम का S दोनों small में हो। Okay, so what we are doing, राम का R श्याम का S दोनों को छोटा में convert कर रहे हैं lower case में, and then because there is a comma, there is a delimiter in between Ram and Shyam, we will try to consider these two words as two separate words and we will try to separate them। Okay, तो split करेंगे depending upon the delimiter which is there. Any delimiter can be there in the picture, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ comma हो या full stop हो, anything can be there। So next step is what, we will be splitting them। So I will say review is equal to review dot split, ठीक है, and finally I will be doing that word net lemmatization here again। So I will say review is equal to word net dot लेमेटाइज, क्या चीज को लेमेटाइज करो, वर्ड को लेमेटाइज करो, फॉर वर्ड्स, सॉरी फॉर वर्ड इन वर्ड्स इफ, सॉरी इन रिव्यू if not word in set stop words dot words English। ठीक है, दिस इज द लास्ट पार्ट। एंड जब ये सब कुछ हो गया फिर क्या करेंगे, व्हाट इज द लास्ट स्टेप, वी ऑलरेडी नो। ये सब कुछ करने के बाद वी विल सिंपली बी joining all of them। So I will say review is equal to dot join, क्या चीज को, रिव्यूज को, REVIEW, इसको ज्वाइन कर दो। एंड देन ये जितना भी रिव्यू आया, मतलब देखो क्या है रिव्यू का मतलब, क्या है कि रिव्यू के अंदर आपका सब कुछ प्रोसेस हो रहा है। ओके, द वर्ड्स बी इट इन कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स आर इनिशियली बीइंग कंसीडर्ड। ओके, पहला लाइन में। दूसरा लाइन में क्या हो रहा है, सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तीसरा लाइन में क्या हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन सेवरल डेलिमीटर्स वी आर स्प्लिटिंग द वर्ड्स। ओके, एंड फाइनली जब वर्ड स्प्लिट हो गया, इंडिविजुअल वर्ड्स आपके पास अलग अलग रहेगा, तो आप क्या करेंगे, उसको लेमेटाइज कर देंगे सो दैट यू हैव द मीनिंगफुल रूट वर्ड विथ यू। एंड देन क्या करेंगे, सबको एक साथ ज्वाइन कर देंगे। अब जब ज्वाइन कर दिए तो इफ यू लुक क्लोजली हियर, जब ज्वाइन कर दिए, स्टॉप वर्ड्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, लेमेटाइज हो चुका है, तो यही तो हम लोगों का कॉर्पस है ना, यही तो हम लोगों का कॉर्पस है। सो आफ्टर ज्वाइनिंग व्हाट आई विल डू इज आई विल से कॉर्पस डॉट अपेंड, क्या चीज अपेंड कर दो, पूरा का पूरा हम लोग जो मेहनत किए रिव्यू पे उसको कॉर्पस के अंदर अपेंड कर दो। सो आई गेस आपको समझ में आया होगा, bool ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, क्या दिक्कत है, रिव्यू इज इक्वल टू वर्ड नेट डॉट लेमेटाइज वर्ड फॉर वर्ड इन, सॉरी ठीक, फाइन। सो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये कॉर्पस कैसे डिफाइन किया गया है। कुछ भी नहीं है, जो पैराग्राफ का सेंटेंसेस है शुरू वहीं से करेंगे, है ना। डेटा मिलेगा कहाँ से, कॉर्पस मिलेगा कहाँ से, कहीं से पैराग्राफ मिलेगा तब तो उसको कॉर्पस में कन्वर्ट किया जाएगा, रिक्वायर्ड कॉर्पस में आई वुड से, क्योंकि पैराग्राफ भी एक तरह का कॉर्पस ही है। सो उसको रिक्वायर्ड कॉर्पस में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू हैव अ पैराग्राफ। वंस यू हैव द पैराग्राफ you will convert the different sentences, or you will break it down to different sentences by performing sentence level tokenization। उसके बाद जो भी individual words है उस पे इस तरह से हम लोग प्रोसेस करेंगे, ये 3-4 चीज करेंगे हम लोग, and then we will be performing lemmatization and finally सबको ऐड करके कॉर्पस के अंदर
append कर देंगे. Now once you do this, you can run this cell TF-IDF वाला. Okay, so now you know what corpus you are actually talking about. This corpus, and यही जो corpus है, जो lemmatized words है basically, उसको क्या करना है, array में convert कर देना है. तो ये चीज हो जाएगा. And finally I will just show you the output. I will say print x and it will show you these outputs. और similarly आप simply x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. And you are getting this output. So you see, you are getting 1 0 1 point something 0 point something, all these things you are getting, and every time the paragraph that you have, उस पे depend करते हुए ये values बदलेगा. कभी कभी you will find that the paragraph once you convert it, मतलब ये जो आपका final array जब आएगा, तो you will notice कभी कभी 0.25 लिखा रहेगा, कभी कभी 0 लिखा रहेगा, कभी 0.1 लिखा रहेगा, okay, कभी 0.3 लिखा रहेगा, कभी 0.28 लिखा रहेगा, all those things लिखा रहेगा. कहने का मतलब है कि जिसमें भी 0.25 लिखा है, 0.3 लिखा है, 0.28 लिखा है, they are having some similarity with each other. Okay, तो ये चीज you will notice once you practice this with some different corpus or some different paragraphs basically, ताकि आपको एक fair idea मिल जाए कि किस तरह से relationship और similarity between the words को restore करके रखता है TF-IDF. तो इसको I am saving right now. The next part that we have to discuss is bidirectional RNN. लेकिन उससे पहले we have to discuss something known as the different variants of recurrent neural network architecture, जो कि usually हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. मतलब you can tell me if you want to discuss that today, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को, वो 50 मिनट मतलब 10 मिनट में थोड़ा टाइम लगेगा उसको. Up to you. I mean, if you feel like you can, I'm not in a hurry. It's fine. ओके, मतलब 5-10 मिनट अगर एक्सटेंड हो तो इट्स ओके ना. Yeah, I think I don't have any problems. ओके, ठीक है, ठीक है. सो आई विल जस्ट टॉक अबाउट दैट एस्पेक्ट. आई विल नॉट बी एक्सटेंडिंग मच. थोड़ा सा बात करते हैं द डिफरेंट वेरिएंट्स व्हिच आर देयर एंड देन वी विल बी वाइंडिंग अप द क्लास. तो basically when we were like in the last week's discussion, when we were discussing about the different, I would say, applications of RNN, है ना? So at that point of time I told you name entity recognition can be one application, sentiment analysis can be one application, then your language translation can be one application, है ना? ये सब हम लोगों का अलग अलग तरह का application होता है. Now whenever we are discussing about so many applications of NLP or recurrent neural network, we also need to keep in mind कि हर बार जब आपका ऑब्जेक्टिव बदल रहा है तो आपका आर्किटेक्चर भी बदल जाएगा. कहने का मतलब है कि the architecture of RNN that you use in case of sentiment analysis will be far different from the architecture that you will use for language translation, okay, or name entity recognition for that matter of fact. Okay, so broadly speaking there are 4 architectures in case of RNN that you should be knowing. So I will be just explaining those things to you कि कौन सी सिचुएशन में किस टाइप का आर्किटेक्चर बैकएंड पे यूज हो रहा होगा. अगेन व्हेन वी डू द कोडिंग वो चीज आप कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे. वी डोंट गेट दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रैक्टिकली और लाइक फिजिकली शो दोस थिंग्स टू यू. बट हाँ, आपके दिमाग में ये पिक्चर होना चाहिए कि हाँ, अगर हम लोग एक सेंटिमेंट एनालिसिस का प्रॉब्लम बना रहे हैं या कुछ वैसा कर रहे हैं तो बैकएंड में यही टेक्निक यूज हो रहा होगा. ओके, या यही आर्किटेक्चर पिक्चर में आ रहा होगा. दैट शुड बी देयर इन योर ब्रेन. ओके, तो ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 4. अगेन 4 में भी 3 ही यूज होता है, एक तो बहुत सिंपल सा है. सो आई विल बी टेकिंग अप दोस 4 डायग्राम्स बेसिकली राइट नाउ एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सी सिचुएशन में किस टाइप का आर्किटेक्चर बनेगा. ठीक है, सो डिफरेंट RNN architecture. राइट, सो मान लेते हैं हम लोग सबसे पहला वाला लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हिच इज नोन एज
1-to-1 आर्किटेक्चर। ठीक है, ये 1-to-1 आर्किटेक्चर का मतलब क्या है? 1-to-1 आर्किटेक्चर मतलब यू विल हैव वन इनपुट, ओके, वन इनपुट एंड यू विल हैव वन आउटपुट। तो दोनों चीज आपका 1-1 रहेगा, एक ही इनपुट भी रहेगा, एक ही आउटपुट भी रहेगा। सो हाउ इज द फिगर गोइंग टू लुक? You know, this is how we represent a RNN cell, है ना? एक RNN के सेल को इस तरह से we represent just like a box. Okay. So when we talk about 1-to-1, इसमें क्या होगा कि at any given time step you are going to provide an input. Let's say xi is the name of the input that you are providing. This can be any word or any statement, anything, and then you are getting some output. मान लो y hat or yi hat. Okay. This is a simple 1-to-1 architecture कि आप एक टाइम स्टेप पे, गिवन टाइम स्टेप पे आप एक वर्ड या आप एक सेंटेंस को पास कर रहे हैं इनसाइड द RNN सेल एंड यू आर गेटिंग सम करस्पॉन्डिंग आउटपुट। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव एंड दिस इज वाई हैट, मतलब ये आपका प्रेडिक्टेड आउटपुट है ना? ये आपका प्रेडिक्टेड आउटपुट है। एक्चुअल आउटपुट y कहीं ना कहीं होगा। सो y माइनस वाई हैट जब करेंगे तो आपको लॉस कंपोनेंट मिल जाएगा। बैक प्रोपगेशन करके इस लॉस कंपोनेंट को डिक्रीज कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है इनिशियल क्लासेस के हिसाब से, सो आई एम नॉट डीलिंग विद दैट एनीमोर। फाइन, दिस इज 1-to-1 आर्किटेक्चर। एक इनपुट देंगे, एक आउटपुट मिलेगा। सेकेंड केस इज मेनी टू मेनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे का क्लासेस में भी हम लोग इस टॉपिक को फिर से डिस्कस करेंगे, मेनी टू मेनी आर्किटेक्चर। सो मेनी टू मेनी आर्किटेक्चर। नाउ अगेन एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, मेनी टू मेनी का मतलब क्या है? मेनी इनपुट्स एंड मेनी आउटपुट्स, राइट? सो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ओके, इसका फिगर कैसे बनेगा? इसका आर्किटेक्चर कैसे बनेगा? इसमें आई विल बी यूजिंग मल्टीपल इनपुट्स, है ना? तो मल्टीपल इनपुट में मान लो इस तरह से मेरा मल्टीपल RNN का सेल है एंड आउटपुट में भी मल्टीपल RNN का सेल है, लाइक दिस। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट थोड़ा सा। एट ईच टाइम स्टेप यू आर प्रोवाइडिंग इनपुट हियर, ओके, बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी आउटपुट इस पार्ट में। ठीक है, दे आर ऑल इंटरलिंक्ड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दे आर ऑल इंटरलिंक्ड, जस्ट अ सेकंड, दे आर ऑल इंटरलिंक्ड, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। But the thing is that in the first half, you are not going to get any output. You are just providing input. मान लो x at t, you are giving any input. Then x at t plus 1, you are giving any input. And then x at t plus 2, you are giving any input. मान लो for the time being, you are giving input like a, b and c. ठीक है, 3 input you have given. But you are not getting any y hat here, है ना? कोई आउटपुट यहाँ पे इस तरह से नहीं मिल रहा है जो कि लास्ट केस में मिल रहा था। सो यू आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट हियर। द आउटपुट्स आर गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन दिस हाफ। सो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा वाई टी हैट, यहाँ पे दूसरा मिलेगा वाई टी प्लस 1 हैट एंड यहाँ पर मिलेगा वाई टी प्लस 2 हैट। तो जो आउटपुट मेरे को वहीं पर उसी टाइम पे उसी सेल के थ्रू मिल जाना चाहिए था, वो वहां का वहां नहीं मिल करके मेरे को एक दूसरे सेगमेंट में मिल रहा है। ओके, दिस इज नोन एज मेनी टू मेनी आर्किटेक्चर। व्हेन वी विल टेक अप द टॉपिक ऑफ अटेंशन मॉडल्स, आई विल अगेन रिकंसिडर दिस फिगर, वी विल अगेन टॉक अबाउट दिस, बट अभी के लिए इतना समझना इज सफिशिएंट। वन मोर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज, अच्छा यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा, मान लो द आउटपुट इज, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, एंड मान लो फॉर द टाइम बिंग कि ABC जो है आपका, उसका ट्रांसलेशन होता है मान लो अ, हिंदी का अ, B का लेट्स से ब एंड C का मान लो, C कैसे लिखा जाता है, S C, लेट्स से दिस इज व्हाट वी गेट। ओके,
इस टाइप से, या लेट मी राइट इट डाउन थोड़ा ठीक से. So let's say this is C in Hindi, this is B in Hindi, and this is A in Hindi. Okay, so we are doing a language translation English से Hindi. इस टाइप से आपको आउटपुट मिलेगा. One thing that you should remember is this half is known as encoder. Okay, and the second half where you are only getting the output and all, that is known as decoder. ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखना is more than sufficient. जब हम लोग attention module के बारे में बात करेंगे तो there are two three things more which has to be discussed with respect to this figure, like context vector and all. तो वो तब बात करेंगे. अभी के लिए it is more than sufficient how many to many architecture works. तो आप बहुत सारा input दे रहे हैं A, B, C, and you are getting multiple outputs as well in case of language translation. This is many to many architecture. ठीक है, ये दो आर्किटेक्चर क्लियर है? कोई डाउट है दोनों में, 1 to 1 एंड many to many में? एंड ये many to many याद रखना, काफी यूजफुल होगा आगे चल के. Yeah, it's fine. So yeah, I have no doubt. ठीक है, ठीक है. सो ये दो हो गया. देन कमिंग टू थर्ड वन, अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा. सो व्हाट वी हैव हियर इज many to one architecture. Okay, many to one architecture. Again, you know what I'm trying to say. Many input and only one output. तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? Again, simple. You will have many input cells like this. Okay, and you will have one output cell. तो यहाँ पर input दिए. Okay, again all of them are interlinked, and you are going to get output here. Okay, यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएगा, मान लो y hat. यहाँ पे दिए x1, x2, x3, इस टाइप से दिए इनपुट, एंड फाइनली द आउटपुट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड एट दिस एंड. तो ये हो गया आपका many to one architecture. Example can be sentiment analysis. Okay, why? Because in case of sentiment analysis, मान लो you are giving a statement like the movie was boring. ठीक है, तो the movie was boring, इसको क्या करेंगे हम लोग? एक एक करके इनपुट देंगे. So मान लो this is x1, this is x2, this is x3, right? This is x4. So one by one we will be giving the input यहाँ पर, है ना? And इसका final output क्या निकलेगा? The main keyword is boring here. Boring मतलब एक negative sentiment, है ना? तो the output that you should be getting out of this model or out of this statement is, मान लेते हैं 0. ठीक है, let's say 0 stands for negative, so you will be getting 0. और अगर positive होता तो मान लेते हैं 1 होता, output मिलता. So something like that. Okay, so ये चीज आपको मिलेगा output. And now you can very well see that the output is what? Only one statement, or output is only one word or only one letter or only one alphabet, कुछ भी समझो. But the input is many in number. The movie was boring. ये 4 word है हम लोग के पास. But output क्या है? Either 0 or 1, है ना? So that is why this is many to one architecture. Similarly, चौथा वाला है जिसको कि हम लोग बोलते हैं one to many architecture. One to many architecture. Okay. So one to many में क्या होगा? Again इसका reverse होगा. You will just give one input and you will have multiple outputs. Diagram बनाना again very simple. One input and output आपका बहुत सारा आएगा. Now इसका थोड़ा सोचो कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है. Let's say you are giving one input here x1 and आपको multiple output मिल रहा है. मान लो y hat 1 मिल रहा है, y hat 2 मिल रहा है, y hat 3 मिल रहा है, like that. Okay, so you're getting multiple outputs from one single input.
ठीक है, just think of it, 1 minute का time लो, think of it, what can be the application of this, anything that comes to your mind. I think breaking of sentence into words. So Word level tokenization, ठीक है, ठीक है. okay, so where we are breaking a sentence into multiple things or words to sounds. Yeah. Okay, okay, ठीक है. एक और हो सकता है आपका, like what you have given is a very relevant and a very simple example, तो वो समझने के लिए अच्छा है. Apart from that, I'm giving you a थोड़ा सा complex example, which is your, what you have said is perfectly right, so you can recall that as well whenever discussing about one to many. एक वो example हो सकता है. साथों साथ you can also mention about name entity recognition here. ओके, नाउ यू विल से कि सर ये कैसे होगा, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन कैसे होगा. तो यहाँ पर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट व्हेनेवर यू आर प्रोवाइडिंग इनपुट टू योर RNN सेल यू विल ओनली प्रोवाइड अ वर्ड. यू कैन प्रोवाइड अ सेंटेंस आल्सो, है ना, जैसे यहाँ पर ही है, यू कैन प्रोवाइड अ सेंटेंस हियर एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी गेटिंग सम आउटपुट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. ओके, तो जब आप नेम एंटिटी रिकॉग्निशन करते हैं तो क्या करते हैं, x1 that you will be feeding will be a statement, a proper statement. Okay, and आपको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाईलाइटेड वर्ड्स मिलता है ना. नेम एंटिटी रिकॉग्निशन मतलब क्या है कि आप एक इनपुट स्टेटमेंट देंगे, you will be giving one input statement and the words which are there, the names basically which are there, let's the name of a person, the name of a company, whatever, they are going to get highlighted, वही आपका आउटपुट हो जाएगा. Okay, so let's say the statement that you have, it is having 3 words which are the name of a person, the name of a company, the name of a car, whatever. ठीक है, तो जब आप एक इनपुट स्टेटमेंट दे रहे हैं उसका आउटपुट क्या निकल रहा है, 3 हाईलाइटेड वर्ड्स. सो दैट इज व्हाई दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन दिस वे, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन. मतलब आप एक स्टेटमेंट दिए इनपुट में एंड उस इनपुट स्टेटमेंट के अंदर 3 वर्ड्स था जो कि हाईलाइट हुआ, तो those 3 words are going to be displayed as output. That is why you will have many output from one single statement that you are feeding. Okay, so name entity recognition can be another example apart from what you were seeing. Okay, these are the 4 important architectures, out of which the most important one is this one. So we will again take up this figure in depth when we discuss about attention models, but abhi ke liye itna sufficient hai.